Good morning, students. Today I am going to continue my lecture for plus 2 political science, and the name of the chapter is End of Bipolarity. As you already learned that USSR and US are two power blocks during the Cold War. But after the Cold War, USSR become disintegrated and it divided into another republic's country. The disintegration, ठीक है, द डिक्लेरेशन ऑन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जिसको नाम दिया गया था CIS, ठीक है, एज अ सरप्राइज टू अदर रिपब्लिक्स स्पेशली टू द सेंट्रल एशियन वंस. क्या हुआ कि एक्सक्लूशन ऑफ दीज रिपब्लिक वाज एन इशू दैट क्विकली सॉल्व बाय मेकिंग क्या फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ CIS. रशिया ने एक्सेप्ट किया कि सक्सेसर स्टेट ऑफ सोवियत यूनियन. It inherited the Soviet seat in UN Security Council. Russia accepted all international treaties, commitments of the Soviet Union. इसके अलावा it took over as the only nuclear state of the post-Soviet space, carried out some nuclear disarmament measures with US. जो old Soviet Union था वो पूरी तरह dead and buried हो चुका था. अब क्वेश्चन ये है कि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ. सेकेंड मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड सडनली डिसइंटीग्रेट. दिस क्वेश्चन जो है वर्थ आस्किंग, नॉट जस्ट टू अंडरस्टैंड द सोवियत यूनियन द एंड ऑफ कम्युनिज्म, बट आल्सो बिकॉज इट इज़ नॉट द फर्स्ट एंड मे नॉट बी लास्ट पॉलिटिकल सिस्टम टू कोलैप्स. देयर आर यूनिक फीचर्स ऑफ सोवियत कोलैप्स, ठीक है. उसके बाद देयर मे बी सम जनरल lessons to be drawn from this very important case. There is no doubt that the internal weakness of Soviet political and economic institutions which fail to meet the aspiration of the people, ये सब responsible थी for the collapse of the system. Economic stagnation for many years उसने क्या किया, led to severe consumer shortages and large section of Soviet society began to doubt and question the system and to do so openly. अब ये जो सिस्टम है become very weak. Why did the economic stagnate? आंसर जो है partially clear है. Soviet economy used much of its जो resources in maintaining a nuclear and military arsenal, ठीक है, और development of satellite states in Eastern Europe, ठीक है, within Soviet system, 5 Central Asian republics in particular. इससे क्या हुआ, इकोनॉमिक बर्डन पड़ गया, सिस्टम जो है इसके साथ कोप नहीं कर सका. इस सेम टाइम जो ऑर्डिनरी सिटीजन थे वो मोर नॉलेजेबल हो गए थे अबाउट द इकोनॉमिक एडवांसेस ऑफ द वेस्ट, ठीक है. दे कुड सी द डिस्पैरिटीज बिटवीन देयर सिस्टम एंड द सिस्टम ऑफ द वेस्ट. आफ्टर years of being told that Soviet system has better than the Western capitalism, the reality of backwardness came as a political and psychological shock. क्या किया, सोवियत यूनियन जो है become stagnant in an administrative and political sense as well. जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसने सोवियत यूनियन पर ओवर 70 years रूल किया और वो लोगों के लिए अकाउंटेबल नहीं थी. ऑर्डिनरी पीपल जो थे एलिएनेटेड बाय द स्लो एंड स्टिफिंग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, रैम्पेंट करप्शन, इनएबिलिटी ऑफ सिस्टम टू करेक्ट द मिस्टेक. इससे क्या हुआ, इट हैड द, इससे हुआ बहुत कुछ हुआ. इससे ये चीज़ हुई कि इट हैज़ मेड द अनविलिंगनेस टू अलाउ मोर ओपननेस इन द गवर्नमेंट एंड उसके अलावा सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी इन वास्ट लैंड. वर्स स्टिल क्या हुआ, द पार्टी ब्यूरोक्रेट्स गेन्ड मोर प्रिविलेज दैन ऑर्डिनरी सिटीजन. People did not identify with the system, with the rulers, with the government, इसलिए lost popular backing. गर्बाचोव ने रिफॉर्म्स के लिए प्रॉमिस किया टू डील विद these problem. गर्बाचोव प्रॉमिस किया टू रिफॉर्म द इकोनॉमी, कैच अप द वेस्ट एंड लूजन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. You may wonder why the Soviet Union collapsed in spite of Gorbachev's accurate diagnosis of the problem and his attempt to implement reform. Here is where the answer becomes more controversial and we have to depend on future historians to guide us better. Basic answer जो है वो है to be when Gorbachev carried out his reform and loosened the system,
He sent in motion forces, expectation that few could have predicted and become virtually impossible to control. अब क्या था कि देयर वर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, सोवियत सोसाइटी, जिन्होंने ये फील किया कि गोर्बाचोव को ज़्यादा से ज़्यादा फास्टर मतलब हर चीज़ को मूव करना चाहिए. डिसअपॉइंटेड, इम्पेशेंट विद हिज मेथड, उसके मेथड से वो खुश नहीं थे. दे डिड नॉट बेनिफिट इन द वे दे हैड होप्ड, दे बेनिफिटेड टू स्लोली. ये काम बहुत स्लो हो रहा था. उसके अलावा अदर स्पेशली मेंबर्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, हु वर सर्व्ड बाय द सिस्टम, उसके बिल्कुल ऑपोजिट व्यू में हो गए. दे फेल्ट दैट देयर पावर प्रिविलेजेस वर इरोडिंग, ठीक है. और गोर्बाचोव जो है मूविंग टू क्विकली इन दिस टग ऑफ वार में क्या हुआ, गोर्बाचोव को ऑल साइड से जो सपोर्ट मिल रही थी वो मिलने बंद हो गई और जो पब्लिक ओपिनियन में डिवाइड हो गया. इसके अलावा दोज हु वर विद हिम वो भी डिसइल्यूजन में आ गए. उन्होंने फेल्ट किया ही डिड नॉट एडिक्वेटली डिफेंड हिज ओन पॉलिसी. लेकिन इन सब ने कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन नहीं हुआ, बट फॉर अनदर डेवलपमेंट दैट सरप्राइज मोस्ट ऑब्जर्वर्स, इंडीड मैनी इनसाइडर. Rise of nationalism, desire for sovereignty within Soviet republics including Russia, Baltic Republic, Estonia, Latvia, Lithuania, Ukraine, Georgia, कुछ others ने prove कर दिया finally and most immediate cause for the disintegration of USSR. फिर इसके अलावा यहाँ पर डिफरेंट व्यूज़ आने शुरू हो गए. वन व्यू ये था कि जो नेशनलिस्ट थे वो अर्ज करते थे और फीलिंग्स जो थी उनकी वेरी मच एट वर्क थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ द सोवियत यूनियन, दैट वेदर और नॉट द रिफॉर्म्स हैड occurred, there would have been an internal struggle within the Soviet Union. This is what if of history, but surely it is not an unreasonable view given the size and diversity of the Soviet Union and its growing internal problems. Other thing Gorbachev did know जो रिफॉर्म किए हैं speeded up, ठीक है, increased national dissatisfaction to the point that government had rulers could not control it. उसके अलावा ड्यूरिंग द कोल्ड वार मैनी लोगों ने ये थॉट किया कि नेशनलिज्म जो है अनरेस्ट वुड बी स्ट्रॉन्गेस्ट इन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, ठीक है. इथनिक एंड रिलीजियस डिफरेंस भी देगी रेस्ट ऑफ सोवियत यूनियन. इकोनॉमिक हार्डनेस को वो इंक्रीज़ करेगी. लेकिन चीज़ें जो थी चेंज होती गई, ठीक है. नेशनलिस्ट जो डिससेटिस्फैक्शन जो सोवियत यूनियन के साथ ही स्ट्रॉन्गेस्ट हो गई यूरोपियन एंड प्रॉस्पेरस पार्ट में, जैसे इन रशिया, बाल्टिक एरियाज एज वेल यूक्रेन, जॉर्जिया. ऑर्डनरी पीपल ने ये फेल्ट किया कि अल्टरनेटिव फ्रॉम द सेंट्रल एशियन एंड फ्रॉम ईच अदर एंड कंक्लूडेड आल्सो दैट दे वर पेइंग टू हाई ऑन इकोनॉमिक प्राइस टू कीप द मोर बैकवर्ड एरिया विद इन द सोवियत यूनियन. अब यहाँ पर मैं आपको टाइमलाइन बताऊँगी सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के क्या कारण थे. सबसे पहले 1985 मार्च में मिखाइल गोर्बाचोव इलेक्टेड जो जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन, उसने बोरिस जेल्सिन को अपॉइंट किया गया हेड ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी इन मॉस्को, ठीक है. इनिशिएट ए सीरीज ऑफ रिफॉर्म इन द सोवियत यूनियन. उसके बाद 1988 इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो है बिगिन हो गई. लिथुआनिया लेटर सेपरेट टू एस्टोनिया एंड लताविया. 1989 अक्टूबर में क्या हुआ, सोवियत यूनियन जो है डिक्लेयर दैट वर्सा पैक्ट मेंबर आर फ्री to decide their own future. बर्लिन वॉल फॉल इन नवंबर. उसके बाद हुआ 1990 फरवरी. गोर्बाचोव ने क्या किया, स्ट्राइक द सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ 72 years long monopoly on power by calling on the Soviet Parliament Duma to permit multi-party politics. 1990 मार्च में क्या हुआ, लिथुआनिया जो था
the first of 15 Soviet Republic to declare its independence. 1990 जून में क्या हुआ, रशियन पार्लियामेंट जो है उसने डिक्लेयर कर दी अपनी इंडिपेंडेंस फ्रॉम द सोवियत यूनियन. 1991 जून में क्या हुआ, येल्सन जो है नो लॉन्गर इन द कम्युनिस्ट पार्टी बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द रशिया. 1991 अगस्त में क्या हुआ, द कम्युनिस्ट पार्टी हार्डेन्स स्टेज ऑन एबॉर्टिव कूप अगेंस्ट गर्बाचोव. 1991 में क्या हुआ, 3 बाल्टिक रिपब्लिक्स ऑफ एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया जो बिकम यूएन मेंबर्स, लेटर ज्वाइन इन्होंने नाटो इन मार्च 2004 में. 1991 दिसंबर में क्या हुआ, रशिया, बेलारूस, यूक्रेन डिसाइड एनुअल 1992 ट्रीटी ऑन द क्रिएशन ऑफ यूएसएसआर, इस्टेब्लिश कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, अमेरिका, अजरबैजान, मोल्दोवा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड Uzbekistan joined the CIS. Georgia joined later in 1993. और जो रशिया टेक ओवर यूएसएसआर सीट इन यूनाइटेड नेशंस. 1991 दिसंबर में क्या हुआ, गर्बाचोव ने रिज़ाइन दे दिया एज द प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन एंड एंड ऑफ सोवियत यूनियन हो गया. ये था बच्चे, मैंने आपको समझाया. अब गर्बाचोव जो था सोवियत यूनियन का, ये 1931 में बॉर्न हुआ, लास्ट लीडर ऑफ सोवियत यूनियन. 1985 से 91 इंट्रोड्यूस इसने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म पॉलिसीज ऑफ पेरेस्ट्रोइका, रीस्ट्रक्चरिंग जिसको कहते हैं, एंड ग्लासनोस्ट ओपननेस जिसको इसने ऑन स्टॉप कर दी आर्म्स रेस विद यूएस, withdraw Soviet troops from Afghanistan, Eastern Europe, help in unification of Germany, ended the Cold War, blamed for disintegration of Soviet Union. Thank you students.